Hey UPSC aspirants, after slipping February out of your hand and from your preparation calendar, you have left with only March, April and only few days of May. So आपको अपनी preparation में थोड़ी depth बढ़ानी होगी. Only having revision, notes reading, books reading may not be sufficient for you, and especially for the year 2025 जबकि आपके पास जो seats हैं वो कम हैं. This time you have only 979 seats as compared to 1056 seats UPSC Civil Services Prelims in 2024. So this time आपके पास seats कम हैं. एक seats का merit से correlation होता है. कैसे? Opposite. जितनी ज़्यादा seats होती हैं relatively merit उतनी कम जाती है. जब seats कम होती हैं तो उसका एक impact पड़ता है merit पर. तो जब भी हमारे पास नियरली 80 सीट्स कम है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ये 1 से 2 या 3 नंबर तक का कट ऑफ बढ़ा सकता है. तो मतलब ये कि आपको अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी. इस सेशन में हम ये समझेंगे कि जस्ट 1 मार्क का कितना इम्पैक्ट होता है एंड स्पेशली 5 मार्क्स का कितना इम्पैक्ट होता है, जो कि एक प्रीलिम्स और दूसरे प्रीलिम्स में हम लोग डिफरेंस नोट करते हैं. इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि टॉपर्स अपने लास्ट के 90 डेज को कैसे स्पेंड करते हैं एंड इसमें टॉपिक वाइज MCQs का क्या रोल है आपकी प्रिपरेशन में, कैसे ईयर आफ्टर ईयर वेस्ट करने को आप प्रिवेंट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग अ टॉपिक वाइज स्टैंडर्ड प्लान. सो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि नज 100 किस तरह आपकी प्रिपरेशन में रोल प्ले करता है. व्हाई नज? बिकॉज आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ रीडिंग यू कमिट सेम मिस्टेक्स especially in harder questions in UPSC examination hall. So it is a behavioral shaping. It is a training of your mind, how to visualize a question, how to approach a question and how to hit a question, how remain aggressive, confident and offensive towards a question. This is UPSC Prelims Test Series 2025 and 26. This is a topic wise brochure through which we will understand about our preparation, planning and everything. But ये कितना इम्पैक्ट करता है इसके लिए हम पहले रैंक 2 से समझते हैं. सो द कैंडिडेट बिलोंग्स टू 2023 second rank holder Animesh Pradhan. Due to job and limited hours of study, I was afraid of prelims, but topic wise MCQs proved to be a massive weapon. This is something every Karol Bagh candidates know, Rajendra Nagar candidates know, most Delhi candidates know, most smarter candidates know, but you may not. Now listen from Aditya. You will sense your gaps in preparation. You should solve standard topic wise MCQs for every chapter to avoid civil services prelims failure. This is not only about rank 2 and rank 1. Some more candidate who proposes this belongs to rank 6. This is Srishti Dabash. I was a banking person. Solving topic wise MCQs gave me confidence that I could clear UPSC prelims. We will also hear the story of some candidates topping previous years. This Akshat Jain, rank 2 in civil services 2018, says, I was quite scared of prelims, though mains was equally tough, but prelims holds the key. To overcome my fear of missing prelims, I solved lots of topic wise MCQs. It worked for me. Not only rank 2 Akshat, but some more candidates, and especially this story belongs to some average students. This is about Akriti Sethi, who failed UPSC prelims 5 times, and in 6th attempt someone suggested Akriti to solve topic wise MCQs, and it worked for her, and this story was published in India Times also. C is Akriti Sethi. कई अटेम्प्ट दिए पर यूपीएससी नहीं निकला. ये ट्राई करो, अपने नोट्स बुक्स रिवाइज करें, साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करें, क्लैरिटी आती है. सो सी इज सजेस्टिंग अबाउट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज. व्हाट इज दिस तिलिस्म? व्हाट इज दिस सीक्रेट? एवरी टॉपर डिस्कसिंग अबाउट. Okay, more candidates. Visakha Yadav, IS topper who failed prelims 2 times before getting All India rank 6, knows her success story, age, education. Everything we will you can listen from Visakha Yadav from her blogs. I was failing to maintain continuity in studies and one hand, and on other hand, I failed prelims twice. During my third attempt, standard solving MCQs
on daily basis, which pushed my study hours and confidence. So this was Visakha Yadav. Some more candidates who followed topic wise MCQs belong to this lady. I could not clear prelims in my first 4 attempts. Someone advised me to solve MCQs after every revision, which surfaced my mistakes. I solved nearly 10,000 topic wise MCQs during my 5th attempt. Pooja Ranapat. And finally, she cleared, got 258 rank. See, most of the topper solves topic wise MCQs, most of the toppers. But it is only subject matter if you are aware of this or not. You can walk around libraries in Karol Bagh, or Rajendra Nagar and Mukherjee Nagar. You will find that there are groups who studies, जो पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज MCQs को, वो अपने ग्रुप्स बनाते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि किसकी क्या क्या स्ट्रेंथ रही, क्या वीकनेस रही, कैसे लोगों ने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, उनको ब्रिज करने के लिए क्या मेथड्स होते हैं. ये सारी चीज़ें अगर आप प्रीलिम्स के पहले नहीं करते, देन यू आर बाउंड टू फेल, देन यू आर सपोज टू फेल. एंड फेलिंग प्रीलिम्स हैज 2 setbacks. One, wastage of 1 whole year, and other is mental trauma, because you left with nothing in the hand to do after prelims. If you clear prelims and failed in mains, you have something to study. But if you failed prelims, you have double trauma. I do not want any of my student to face these 2 trauma hand by hand. So I want you to clear UPSC prelims this time. See, you can also read about जुनैद AIR 3. मैं तो परेशान हो गया था, ये पढ़ो तो वो छूट जाता था, सिलेबस ही नहीं कवर हो पा रहा था, इस चक्कर में प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा था. वो तो भला हो मेरे फ्रेंड का जिसने मुझे डेली MCQs सॉल्व करने के लिए प्रेशराइज किया. He also solved lots of topic wise MCQs. See, you should always remember that this is a common story. Nearly 4,600 candidates fail civil services prelims every year just by 1 marks or even lesser. 0.9 marks, 0.6 marks, 0.3 marks. And nearly 50,000 candidates are there who fail civil services prelims just by 5 marks or even lesser. There are around 50,000 candidates every year. Are you one of them? Or you are failing prelims even by larger marks, larger gaps? For both the type of candidates who are failing prelims by wider gaps or by a narrow gap, by a narrow margin, for both type of candidate, Nudge 100 brings a super solution. Because nearly 15,000 candidates, around 12 to 15,000 candidates appear civil services prelims, civil services mains. Nowadays this number is even lesser, and the number goes down, the competition goes up. Therefore you should be very focused in your preparation. The common to all the candidates who appear UPSC mains is right guidance, multiple revisions and topic wise MCQs. Topic wise MCQs is the ultimate weapon that ensures you to appear in UPSC civil services mains. Otherwise failing becomes your behavior, failing becomes your habit, and you fail UPSC prelims year after year, just like a train passing from a platform every day. UPSC comes, stops, goes, comes, stops, goes. No, it does not stop for you. It just leave you on your platform and you never reaches to Lavashna. So do not fail UPSC prelims again and again. You should bridge all your gaps, and to bridge all your gaps, you should have your gaps identified, your mistakes identified, your problems identified, not for whole the syllabus at one glance, but by bit by bit. You require baby steps. In last 80 to 90 days, you require topic wise study, topic wise MCQs for every single topic, and for that the Conceptual IS has brought UPSC prelims test series for candidates appearing in 2025 and also for those who are appearing for 2026. We have separate programs for them, and in this
you will have approximate 6,000 UPSC standard question, and our level of question is best in India. When I say best in India, you should come to our applications, solve some of the test, and you will gauge the depth. Otherwise, your preparation will be very shallow and superficial. You should solve the deeper question. We do all the research based on UPSC prelims questions of last 50 years, and that's why we know that UPSC is very dynamic. And what is its next move? This is the program through which UPSC has asked number of questions. See, in 2022, nearly 62 questions जो कि नज 100 के प्रोग्राम से आए. Then the size of nudge 100 was only 3,500 questions. In 2023, there were a very difficult question paper, and here 56 questions came from nudge 100 in UPSC Civil Services Prelims 2023. In UPSC Civil Services Prelims 2024, this number went up to 67. Why? Because by 2024, we had 100 topic-wise test paper with more than 5,000 MCQs. More than 5,000 MCQs. And here you will have polity, IR, history, geography, economy, environment, science and tech, and dedicated questions covering entire syllabus, entire chapters, and every topic, their examples, interpretations available in vast variety of resources. Government publications, NCRTs, state publications, The Hindu, PIB, PRS, NIOS, and international publications, especially journals, जहाँ से साइंस टेक एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी के अप्रॉक्सीमेट 20+ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको अपनी बुक्स में कभी नहीं मिलेंगे. तो आपको ये सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए हियर एंड देयर स्विंग नहीं करना, बिकॉज यू कैन नॉट स्विंग टू मच, यू हैव लिमिट्स. We do not, because we have a dedicated team to have research to select or deselect standard topics and their application and interpretations in daily life. So उसके behalf पर यहाँ question का design होता है. UPSC generally asks questions having 2 to 3 dimensions, 4 to 5, 3 to 4 statements. We generally cover 4 to 5 dimensions and 4 to 5 or 6 even up to 7 statements based questions. That's why if you are scoring only 50% in nudge 100, I guarantee that you will clear UPSC prelims. You will clear UPSC prelims not just by 1 or 2 marks, but you will score fairly 120 plus if you are fetching 50% right questions from nudge 100 UPSC prelims test series based on topics. Okay, so in this session you will get 58 topic-wise standard papers, 12 revision papers, 15 advanced level papers, and 15 comprehensive papers, and this is graded 3 out of 5 by all the grading agencies, and this is the highest because UPSC standard is below 3. Our standards for advanced level papers is more than 4 out of 5. That's why nudge 100 provides you more than 60% to question, and in 2024 ये तो 67 questions थे, जबकि सीधे nudge 100 से आपको UPSC prelims में question मिले. Some of them are very direct, some of them are indirect. So आपको इस तरह से प्रिपेयर करने की जरूरत है. आइए उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव पेपर नंबर 1, and in paper number 1 the topic is polity and constitution. Then how topics are covered? To cover the topic, you need to study democratic politics part 1 and part 2, constitutional development, making, features of Indian constitution, citizenship, union and its territories. So this is for the first paper. After having, here sources are also mentioned. After reading this part, you should appear first test, and for every wrong questions there is a separate section.
एंड द क्वेश्चंस विच आर अनअटेम्प्टेड उनके लिए भी एक अलग से सेक्शन है। तो आप उसमें पॉइंटर बनाते हो, वो हमारी टीम आपको बताती है कि किस तरह से आपको पॉइंटर बनाने हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आई पर्सनली मैं आप लोगों के साथ काम करता हूं जिनका प्रीलिम्स मुझे डाउटफुल लगता है, बिकॉज जनरली ऐसा नहीं होता कि हमारे बच्चे कभी प्रीलिम्स फेल करें, ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट होता हो, बट यस जिन्होंने सीरियसनेस दिखाई उनकी क्या प्रिपरेशन है बिफोर मार्च, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रिपरेशन अच्छे है, कम अच्छे है, नहीं अच्छे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे कि नहीं करोगे ये लास्ट के 75-80 डेज में डिटरमाइन होता है कि आपने लास्ट टू मंथ और मोर देन 2 मंथ का टाइम कैसे आपने स्पेंड किया, ये इस बात पे डिटरमाइन होता है। अगर आप नज 100 के शेड्यूल को, प्लान को अपनी मसल मेमोरी, अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बनाते हो, आपको मेंस देने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात अलग है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस शायद इसलिए भी ना हो कि हाँ आपकी मेंस की प्रिपरेशन नहीं है, बट अगर आप ये कम ड्यूरेशन में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 6 to 8 मंथ की प्रिपरेशन में यूपीएससी फाइनली क्लियर किया है, 3 to 4 मंथ में प्रीलिम्स क्लियर किया है एंड 3 to 4 मंथ्स में मेंस क्लियर किया है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दो इट इज हार्ड बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आपका फोकस, आपका गाइडेंस और आपके मेथड्स सब कुछ ऑन द ट्रैक हैं। आपको पता है देयर वर सिबलिंग्स ऑफ 4 मेंबर्स लिविंग इन दिल्ली बिलोंगिंग टू प्रतापगढ़, 2 brother and 2 sister, real brother and real sister. They all qualified UPSC prelims, UPSC mains, and UPSC finally they got selected in single year because of a strategy, because of topic wise plan, topic wise prelims, topic wise solving MCQs. So this is the plan you should follow. In second paper you will cover political theories, NCERT, preamble, fundamental right, DPSP, fundamental duties, union, its executives, president, vice presidents, council of ministers of union. वाई? बिकॉज यूपीएससी का जो सिलेबस है जब आप उसे देखते हो, चाहे प्री का देखो चाहे मेंस का देखो, आपको हमेशा उससे क्वेश्चंस मैच नहीं करते। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कोई रेफरेंस सिलेबस में नहीं होता। आप 10-12 ईयर के पेपर्स प्रैक्टिस करते हो, इसके बाद भी वो चीज़ें कैचअप नहीं होती। दैट्स वाई आपको ज़रूरत है कि आप एक बड़ा कवरेज करो, और वो बड़ा कवरेज आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें आपको यूपीएससी के जो एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज हैं वो भी होते हैं, हर पेपर में 5 to 6 पीवाईक्यूज होते हैं, 50 क्वेश्चंस का सेट होता है, 1 आवर का आपको टाइम दिया जाता है, उसी में आपको सॉल्व करना होता है। आप ये टेस्ट मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकते हो। स्पेशली हम आपको वो स्ट्रेटजीज बताते हैं जिससे कैसे आपका स्कोर पहली बार में जो 40, 50, 60 आता है आउट ऑफ 200, वो दूसरी बार में 90, 100 and 110 आता है आफ्टर just 1 to 2 revision, and you cross 140, 150 just 30 to 35 days of preparation in this schedule with this browser. In paper 3 you will see हमारे जो पहले 12 पेपर्स हैं वो सब के सब पॉलिटी के हैं, डेडिकेटेड पेपर्स हैं पॉलिटी के। इन पेपर 4 द Parliament and various offices related to Parliament, parliamentary procedures, these sections will be covered. Paper number 5, Judiciary, Supreme Court, High Court, Lower Court, Tribunal, various principles, philosophies, followed by Indian Judiciary, basic structure. ये सब कुछ सिलेबस में नहीं लिखा होता। यहाँ पे जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं वो यूपीएससी सिलेबस प्लस यूपीएससी मेंस प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स के लास्ट 50 ईयर्स के पेपर्स को फॉलो करते हुए टॉप टर्म्स लिखे गए हैं, सो दैट आप इनको एक बार पढ़ेंगे, सिंगल रीडिंग करेंगे, सोर्सेज हम प्रोवाइड करेंगे, सिंगल रीडिंग करोगे तो आपके अंदर वो चेंज आना शुरू हो जाएगा। और जब टफ क्वेश्चन सही होते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस मिल्क में घुला हुआ कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ये आपके फूड में घुला हुआ कोई न्यूट्रिएंट नहीं है कि आप उसे खाओगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज किसी के कहने से कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। सो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ी धार दीजिए, थोड़ा पैनापन लाइए, थोड़ी शार्पनेस लाइए, थोड़ी डेप्थ लाइए, और उसके लिए ही तो ये पूरा प्लान है। ठीक है। पेपर 6 में आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर एंड स्टेट्स के प्रोविजन मिलेंगे। पेपर 7 में पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड वेरियस थिंग्स। पेपर नंबर 8 कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैच्यूरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैच्यूरी बॉडीज। पेपर नंबर 9 में ऑफिशियल लैंग्वेज, पॉलिटिकल पार्टीज, टेम्परेरी प्रोविजंस, नेशनल सिंबल्स, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, अमेंडमेंट्स, सब कुछ।
फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आपका पेपर नंबर 10 में होगा, पेपर नंबर 11 एंड 12 रिवीजन का सेक्शन होगा, ठीक है। ये सब कुछ आपका स्टैटिक सेक्शन चल रहा है अभी। पेपर नंबर 13 एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, स्टोन एज, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एंड लेटर वैदिक सोसाइटी, लिटरेचर, उपनिषद। And in paper number 14, ancient history, Mahajanpad period, Buddhism, Buddhist literature, architecture, Jainism, Jaina literature, Saivism, Bhagavatism, और ये सारा सेक्शन आप कुछ करेंगे। देन आपके सामने आएगा पेपर नंबर 15, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन, मौर्यन पीरियड, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर मौर्यंस। The post-Mauryan empires includes literature, culture, cultural change, coinage and economy. This all belongs to paper number 15 of ancient history and culture. Paper number 16, ancient India and culture, includes Gupta and post-Gupta period, literature, architecture, economy and social change under Gupta and post-Gupta, temple architecture of North India from earliest time to 8th century, achievements in the field of science and technology, social change, historical extremism with respect to Sudras and women. And then paper number 17 about ancient India and culture includes ancient history of South, Meghalith culture, Sangam period, economy, literature, history and culture, society, administration, architecture under Pallavas, Cholas and Chalukyas. In paper number 18 paper number will be based on revision of ancient India. Paper number 19 belongs to medieval India, a system of education from 8th to 10th centuries, impact of Islamic invasion of India during early medieval period, literature, architecture, administration, economy of Delhi Sultanate. So this all belongs to medieval history. And sources: old NCERT, medieval India, CCRT, class 11th NCERT, introduction to Indian art part 1, class 12th new NCERT, themes in Indian history part 2, जो कि medieval history के बारे में है. And in next part, paper number 20, administration, economy, architecture, literature under Vijayanagar, provincial kingdom, medieval history and culture of South India, Bhakti movement of South India, conflicts and social change since 8th to 16th century. Then medieval India का पेपर नंबर 4 आता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, 21 में एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, म्यूजिक अंडर मुगल एम्पायर एंड राजपूत किंगडम्स, देन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जागीरदारी, जमींदारी सिस्टम। ये वो एरियाज है जहाँ से फ्रिक्वेंटली यूपीएससी क्वेश्चंस पूछते हैं। और आजकल तो वैसे भी एंशिएंट एंड मिडाइवल के 5 to 7 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके सोर्सेज ही आपको नहीं पता चलते। एनसीईआरटीज में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी आते कहाँ से आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आपको अपने सोर्सेज नहीं बढ़ाने। ये जो नज 100 है ना, ये आपको सब कुछ कायाकल्प कर देगा। इसमें वो सारे सोर्सेज को बहुत गहराई से कवर किया जाता है जिनको आपने कभी शायद सोचा भी नहीं है। इन 22nd पेपर which is about medieval Indian culture, पेपर नंबर 4 है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, क्वाइनेस, अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग medieval पीरियड, फेयर्स एंड फेस्टिवल इन medieval पीरियड, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ रूलर्स 8th to 17th सेंचुरी, लिटरेचर, अकाउंट एंड ट्रैवल आर्क ड्यूरिंग medieval पीरियड। इतना क्लासिफाइड तरीके से हम आपको क्यों चाहते हैं आप तैयारी करो? बिकॉज इन सिंगल डे आप कभी कोई ऐसा सिलेबस इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि पूरा सब्जेक्ट आप तैयार करो और फिर उसकी टेस्टिंग करो। कई बार आप ऐसा पूरे सिलेबस के साथ करने की कोशिश करते हो, बट उससे आपकी लाइन लेंथ नहीं बन पाती। बिकॉज ना तो आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे और ना ही उसके डेडिकेटेड क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिलेंगे कि आप उसे 1 घंटे या 2 घंटे में सब कुछ सॉल्व कर सको। इसलिए हम लोग यहाँ पे नज़्म जो करते हैं वो अलग है, वो इतना अलग है कि इसमें आपके हाथ में है कि आप मेंस देना चाहते हो कि नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि आप बस प्रिपरेशन करोगे, थोड़ा सा एफर्ट दिखाओगे, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। आपको महसूस भी नहीं होगा कि हाँ प्री आसान था। लेकिन जब आप आउट ऑफ फोकस होके और बिल्कुल ओपन ओशियन में बॉर्डर्स को टच करने की कोशिश करते हो तो प्रिपरेशन नहीं होती। आपको चाहिए फिल्टर्ड मैकेनिज्म जिसमें कि आप ओशियन बॉर्डर्स को टच करने की कोशिश ना करो, मीन्स वास्ट सिलेबस में सब कुछ टच करने की कोशिश ना करो। आपको कुछ इस तरह से फिल्टर होकर प्रिपरेशन के टिप्स, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चंस और उसके जो कंटेंट्स हैं वो सब कुछ इस तरह से मिल जाए कि आप उनको पढ़ो और वही के वही स्टेटमेंट आपको बस स्मूथली एग्जाम में सॉल्व करने के लिए मिले, आपके डाउट्स मिनिमम हो, आपको समय न लगे चीज़ों को सिलेक्ट करने में या डिसिलेक्ट करने में। तो वो चीज़ें पॉसिबल है अगर आप अपने प्रिपरेशन में वो अप्रोच अपनाते हो। तो चाहता तो हर कोई है मेंस देना, क्या तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड भी है?
डू यू रियली हैव दैट करेज टू गो थ्रू विद दिस ब्राउजर, दिस सिलेबस? इससे पता चलेगा कि हाउ मच आर सीरियस यू इन पेपर नंबर 23 एंटायर सिलेबस ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री, बिकॉज अब ये रिवीजन का पेपर होता है। देन मॉडर्न अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यहाँ से हमारा मॉडर्न का पेपर शुरू होता है पेपर नंबर 24 से। मॉडर्न का पेपर नंबर 1 है जिसमें यूरोपियंस का अराइवल, गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स अप टू 1857। तो अब आप इसमें क्या करते हो कि गवर्नर एंड गवर्नर जनरल्स उनकी जो पॉलिसीज है अप टू 1857 पढ़ते हो और जाके एक टेस्ट देते हो। आपको डेली एक टेस्ट देना है स्टार्ट में, डेली। आफ्टर हैविंग 1 मंथ यू शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट, बिकॉज आपके पास लेस देन 90 डेज हैं और सॉल्व करने 100 पेपर्स। ये हमारा लास्ट सेशन है आपके लिए, 2025 के बच्चों के लिए ये हमारा लास्ट सेशन है। आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ये इंश्योर करो कि प्रीलिम्स आप डाउटफुल तरीके से पास करोगे या वन शॉट विदाउट डाउट इन फेयर वे, बिल्कुल चालाकी के साथ क्लियर करना चाहते हो, या अभी भी आप अपने उसे मडे एटीट्यूड में रहना चाहते हो। ठीक है। देन 25 पेपर नंबर है हमारा जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मेजर सिविल अपराइजिंग्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, कास्ट मूवमेंट्स, वुमेन रिलेटेड मूवमेंट्स। पेपर नंबर 26 में इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। हमारा पेपर नंबर 27 स्टार्ट होता है जिसमें कि हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं। सो प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज से लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, स्वदेशी मूवमेंट्स, सूरत स्प्लिट, कम्युनलिज्म, मुस्लिम लीग, ये सब कुछ आपका, हाँ उस समय की सिचुएशन जो फर्स्ट वार किस टाइम में बन रही थी वो सब कुछ आपका पेपर नंबर 27 में आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात हम साथ में बताएंगे कि आपको इसमें बीच बीच में टेलीग्राम के लिंक्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए हर पेज में टेलीग्राम का लिंक है जिसमें कि आपकी ब्राउजर मिल जाएगा पहली चीज़ तो, सो दैट कि आप इसको और अच्छे से देख सको। और प्रिपरेशन की क्या टिप्स हैं, किस तरह से चीज़ें आप एक प्रीलिम्स को सिंगल शॉट में क्लियर करना चाहते हो, उसके लिए आपको हमारे ब्राउजर में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स हैं, उसकी हेल्प से आप हमसे जुड़ सकते हो और अपनी अपनी प्रीलिम्स को एक इंश्योर्ड तरीके से क्लियर कर सकते हो। आपका प्रीलिम्स इंश्योर्ड करेंगे हम, आप मेंस देंगे। पेपर नंबर 28 में जिसमें कि मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है, पेजेंट्स मूवमेंट्स ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, लेफ्ट विंग मूवमेंट, इमरजेंस ऑफ टैगोर, गांधी, नेहरू, पटेल, खिलाफत मूवमेंट, स्वराजिस्ट, नो चेंजर्स, सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स मुस्लिम नेशनलहुड, साइमन कमीशन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, कांग्रेस सेशंस फ्रॉम 1970 टू 1930। इतना हमारा है पेपर नंबर 28 में। पेपर नंबर 29 मॉडर्न इंडिया में कांग्रेस सेशन से 1931 से लेकर 36 तक, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, गांधी इवेंट पैक्ट, राउंड टेबल, इमरजेंस ऑफ अंबेडकर एंड पूना पैक्ट, सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ये सब कुछ पेपर नंबर 29 में आता है। पेपर नंबर 30 में है मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस सेशंस 1936 से लेकर 1947 तक, बोस एंड उनके जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, प्रजामंडल मूवमेंट, कांग्रेस एंड सेकंड वार, क्विट इंडिया मूवमेंट, आजाद हिंद फौज एंड वेरियस ऑफर्स एंड मिशंस जस्ट लाइक अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वो सारी चीज़ें हमारा पेपर नंबर 30 में कवर होता है। देन इट कम्स टू पेपर नंबर 31 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी एंड पुलिस रिफॉर्म, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। पेपर नंबर ये है मॉडर्न इंडिया का पेपर नंबर 9। ओके, देन मॉडर्न हमारा रिवीजन पेपर होंगे, 2 रिवीजन पेपर होंगे मॉडर्न के, तो इस तरह से मॉडर्न के पेपर नंबर टोटल 11 पेपर्स हो गए। एंड आफ्टर दिस वी विल एंटर इनटू ज्योग्राफी पेपर नंबर 34 से, जिसमें कि यूनिवर्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट, मून्स एंड अदर बॉडीज, फिजियोग्राफी ऑफ अर्थ, वेरियस लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडीज, वल्कानोस, अर्थक्वेक्स, सिग्निफिकेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स, स्ट्रैटेजिक मैपिंग ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। मैं आपको ये सब कुछ चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ जबकि आपको पता है कि ब्राउजर से सब कुछ मिल जाता है। सी, आपको यहाँ पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट इसलिए होता है कि आप ये सब देख के समझ सकते हैं कि इस सिलेबस को हम लोग कितना डीपली कवर कर रहे हैं। नो वन कैन गारंटी सच अ क्लियर, वाइडर एंड डीपर कवरेज एज द कॉन्सेप्चुअल IAS नज 100 टॉपिक वाइज UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज गारंटीज फॉर यू। पेपर नंबर 35 में क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी एंड वेजिटेशन के सारे एस्पेक्ट हैं, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी से, NIOS ज्योग्राफी से, इसके अलावा OBS अटलस एंड ऑक्सफोर्ड अटलस को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 36 में ज्योग्राफी, फिजिकल एंड वर्ड में ओशनोग्राफी, हाइड्रोलॉजी एंड जितनी वाटर साइंसेस हैं उन सबको कवर करेंगे। 37 में है मेजर ट्राइब्स एंड लैंग्वेजेस, स्पेशली वर्ड में जितना है, सॉयल, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, रिसोर्सेज, मिनरल्स, सब कुछ। देन पेपर नंबर
38 है ज्योग्राफी का, ये अपने आप में पेपर नंबर 5 होगा। इंडिया एंड फिजियोग्राफी, अब ये इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेटीज, आइलैंड्स, प्लेन्स एंड अदर रिलीफ फीचर्स, ये सब कुछ आपका इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। 39 पेपर नंबर है ज्योग्राफी के, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया है। अब इंडिया में कैसे क्लाइमेट बनते हैं, कैसे रेनफॉल होती है, ड्रॉट एंड फ्लड के कैसे पैटर्न बनते हैं, वो सब कुछ आपको कवर करने को मिलेगा इस पेपर में, जो कि अपने आप में है पेपर नंबर 39। पेपर नंबर 40 में नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री इंडिया की है। 41 में है डेमोग्राफिक कंपोजिशन, सेंसस, ट्राइब्स, लैंग्वेज, मिनरल रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंफ्रा, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। 42 में है फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। 43 इंडियन ज्योग्राफी एंड 44 में इंडियन इकोनॉमी शुरू हो जाता है। यहां से आपका पेपर शुरू होता है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, सो अब तक आपको यह आइडिया हो गया होगा कि आपने 9 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ की प्रिपरेशन की, लेकिन इस तरह की कमांड नहीं आई। काश ये पहले हमें मिल जाता तो हम प्री ज़्यादा सेफली क्लियर कर लेते। क्या ऐसा थॉट आपके दिमाग में आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड अगर आ रहा है तो फिर आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। इस पेज में ऊपर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और पेपर सॉल्व करने चाहिए। और अगर आप 50% स्कोर कर पाते हैं, 200 में अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आपके कहीं स्कोर 200 में 40, 50, 60, 70, 80 ही आ रहे हैं, तो आप अपने सिलेक्शन में गारंटी इंश्योर करने के लिए ज्वाइन करो नज 100। ज्वाइन करने का तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम के लिंक हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनकी हेल्प से इसको विद इन 59 सेकेंड्स में पा सकते हो। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने प्रीलिम्स को लेकर कितना सीरियस हो। इकोनॉमी जो कि 44 से शुरू होता है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम, जीडीपी, अल्टरनेटिव्स ऑफ जीडीपी एंड इकोनॉमिक थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड माइक्रो इकोनॉमी। देन पेपर नंबर 2 है इकोनॉमी का, जिसमें आरबीआई मनी एंड बैंकिंग का पेपर फर्स्ट पार्ट है, एंड पेपर नंबर 3 इकोनॉमी का है, जो कि पेपर नंबर है ओवरऑल 46, और इसमें इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग ये सेकंड पार्ट है। देन फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब कुछ। देन पेपर नंबर 47 है गवर्नमेंट बजटिंग, फिजिकल मैनेजमेंट, डेट एंड डेफिसिट, टैक्सेशन। 48 में इकोनॉमिक का पेपर नंबर 5 है एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या सिलेबस में ये सब कहीं कुछ लिखा है? नहीं, बट फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन तो केवल हमारे एक पेपर से मिलता है आपको। तो उसकी तैयारी कैसे करोगे, खुद को एग्जामिन कैसे करोगे, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड में? द हिंदू तो पढ़ा है, लेकिन द हिंदू के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो क्या? ये सब कुछ इंश्योर करने के लिए तरीका है नज 100। पेपर नंबर 49 है, जिसमें कि इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, APEC, G20, ब्रिक्स, SCO एंड मैनी मोर। इंडियाज इंटरेस्ट इन ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये सब कुछ हम पेपर नंबर 49 में कवर करेंगे। पेपर नंबर 50 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग, LPG रिफॉर्म, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट एंड वेलफेयर का पार्ट है। 51 में इकोनॉमी का पेपर है पेपर नंबर 8, एग्रीकल्चर, PDS, बफर स्टॉक, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब्सिडीज, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। पेपर नंबर 2 इकोनॉमी का पेपर नंबर है 9, इंफ्रा, इंडस्ट्रीज, सर्विस एंड ई कॉमर्स। आपने कभी सुने नहीं होंगे कि किसी ने 9 पेपर्स इकोनॉमी के दिए हैं। अभी ये 9 में ख़त्म नहीं होता, पेपर नंबर 10th भी इकोनॉमी का है, पेपर नंबर 11th भी इकोनॉमी का है। इसके बाद स्टैंडर्ड पेपर्स, एडवांस लेवल के पेपर्स में भी इकोनॉमी के पेपर्स हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में भी इकोनॉमी के आपको मोर देन 300 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो ये स्टोरी बड़ी है दोस्त, आप ये कितना सीरियस हो अपने प्रीलिम्स के लिए, ये आपको अब खुद में ही रियलाइज हो रहा होगा। पेपर नंबर 10 सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रपोजल, अनाउंसमेंट्स। पेपर नंबर 19 नेशनल इनकम एंड जीडीपी, ये रिवीजन पेपर इकोनॉमी का। पेपर नंबर 10 भी रिवीजन पेपर है इकोनॉमी का। तो इस तरह से इकोनॉमी के हो गए पूरे 12 पेपर, 12, और वो पूरा सिलेबस फिर आप यहाँ पे रिवीजन करते हो। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हम एनवायरमेंट कवर करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये पेपर नंबर 1 है एनवायरमेंट का। पेपर नंबर 56 है ओवरऑल। प्लांट फिजियोलॉजी तक कवर करेंगे। पेपर नंबर 57 एनवायरमेंट का। पेपर नंबर 2 है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के एरियाज कवर करेंगे। यस, ये आपके लिए जरूरी है। देखो, कई बार हमें लगता है कि हम एनवायरमेंट के PYQ सॉल्व कर चुके हैं, या आपने कोई बुक पढ़ी जिसमें कि PYQ को देखते हुए टॉपिक कवर कर दिए गए, आपको लगता है आपके एनवायरमेंट की प्रिपरेशन हो गई है, आप भ्रम में हैं। क्यों? बिकॉज
एनवायरमेंट में 4 to 5 क्वेश्चन ये सब बुक से आते हैं, ओवरऑल क्वेश्चन आते हैं 17-18। तो 17-18 क्वेश्चंस को जब आप पूरा सही करना चाहोगे तो आपको डाउन टू अर्थ और साइंस बेस्ड जैसे मैगजीन है, नेचर मैगजीन है, इस तरह की जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर मैगजीन्स हैं, उनमें जो फ्लोरा एंड फोना पे रिसर्च चल रही है, इकोलॉजी, इको ट्रेंड, ट्रांजिशन, निस पर जो रिसर्च चल रही है, उसके बिहाफ पर नए नए क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें द हिंदू एक वंडरफुल सोर्स है, बिकॉज द हिंदू साइंस को काफ़ी सीरियसली लेता है, और जो एनवायरमेंटल साइंस को तो और ज़्यादा। एनवायरमेंटल साइंस, फूड, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी, वियरेबल्स, इन पर द हिंदू काफ़ी अच्छे आर्टिकल देता है। तो अगर आप द हिंदू डेडिकेटेड तौर पर पढ़ते हो तो आप एनवायरमेंट के 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सेफली सही कर लोगे। मतलब ये कि अगर 18 क्वेश्चन आए तो 9-10 क्वेश्चन तो ईजिली सही हो जाएंगे। इसके बाद आपको जर्नल्स खोलने पड़ेंगे। मैं कहूँगा मत खोलो, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। यू आर हैविंग ओनली 70 to 80 डेज ऑफ प्रिपरेशन। शायद जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगा आपके पास शायद 2 महीने बचे या केवल 50 दिन बचे। तो आप ये मत करो, आप इसे ज्वाइन कर लो, और जितनी चीज़ें आपकी ज़रूरत है वो हम करते हैं ना, हमारी टीम है ये सब करने के लिए। आप अपना टाइम सही जगह लगाओ, आप इसे करो और सीखो। एक्सपेरिमेंट करने में आपका अब टाइम नहीं जाना चाहिए। पेपर नंबर 58 है कंजर्वेशन मेजर्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पेपर एनवायरमेंट का पेपर नंबर 4 और ओवरऑल 59 क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। 60 एनवायरमेंट का पेपर नंबर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशंस प्रोटोकॉल टुवर्ड्स सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पेपर नंबर 61 एनवायरमेंट का पेपर नंबर है 6, एंड इसमें हम करते हैं नेशनल लॉज, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल टुवर्ड्स सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पेपर नंबर 62 रिवीजन पेपर है एनवायरमेंट का, जो कि एनवायरमेंट के पूरे सिलेबस पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा शुरू होता है पेपर नंबर 63 से, और यहाँ से लेकर पेपर नंबर 70 तक आपको पूरे 8 पेपर मिलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ये डेडिकेटेड पेपर है टॉपिक वाइज। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पेपर नंबर 70 के बाद एडवांस पेपर शुरू होते हैं, जिसमें टॉपिक के एप्लीकेशंस और इंटरप्रिटेशंस बेस्ड जो एक बियॉन्ड द बाउंड्री क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीज़ें कवर की जाती हैं एडवांस लेवल पे। ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपसे फिर बोलूँगा, जो हमारे एक एक क्वेश्चन का लेवल है वो इस तरह से है कि उतना कवरेज बेस्ड क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी नहीं मिलता। बिकॉज हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट फंसा के आपकी थाली में परोस दें, बल्कि हमारा पर्पज ये होता है कि आपका पूरा सिलेबस तैयार हो, और उसमें कहाँ पर वो नुआंस पॉइंट्स हैं, कहाँ वो बारीकियाँ हैं जहाँ पे आप फंस सकते हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए वो चीज़ें फिल्टर करके वो टफर एस्पेक्ट को आपके क्वेश्चन में डाला जाता है, सो दैट कि जो गलतियां आप कर सकते हो वो करो, हम चाहते हैं करो 25 मई के पहले, उस दिन नहीं। पेपर नंबर 63 से साइंस टेक शुरू होता है। देन 64 में 63 में क्या क्या चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। 64 में स्पेस टेक, डिफेंस टेक। 65 में है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोग्राफी। 65 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोग्राफी, बायोटेक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। 66 में है हेल्थ एंड डिसीज, फूड प्रिजर्वेशन। एंड पेपर नंबर 67 में है, अच्छा 66 में मेडिसिन इन कॉमन लाइफ भी है। 67 में एग्रो साइंसेस, बायो फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी एंड मिशंस। एक मिनट, ये एग्रोटेक के लिए कहाँ से पढ़ें? एग्रोटेक के लिए आप अगर नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के सोर्सेज पढ़ते हैं विद द हिंदू, तो वो अपने आप में सफिशिएंट होता है। वो सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th के लिए नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क में एग्रीकल्चर की 2 पतली पतली किताबें होती हैं, 80 से 90 पेज की हैं बस। उसमें से अगर आप इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ते हो तो आपको ले दे के टोटल 120 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं, दोनों बुक्स मिलाकर। आपको रियलाइज हो जाए कि हर साल जो 4 to 5 क्वेश्चन एग्रोटेक से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? क्या आपको पहले से पता था? शायद हाँ, शायद नहीं। प्लस द हिंदू, बस 2 चीजें आपको करनी है। ओके, पेपर नंबर 68 है एलिमेंट्स, compositions, metals, alloys and other chemicals in common life. 69 technological aspect of heat, light, motion, Indians in space tech. एंड पेपर नंबर 70 है साइंस एंड टेक का रिवीजन पेपर। पेपर नंबर 71 से आपके शुरू हो जाते हैं एडवांस लेवल के पेपर, जिसमें कि करंट अफेयर्स मंथ वाइज आपको कवर करना होगा। पेपर नंबर 71 पॉलिटी IR, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड करंट अफेयर्स जुलाई को आपको पढ़ना है। एडवांस लेवल के पेपर नंबर 2 में है पॉलिटी IR, इसमें आपको गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आपको जुलाई का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है। पेपर नंबर 73 जो कि एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में है।
करंट अफेयर्स आपको अगस्त का कवर करना है, पेपर नंबर 74 में भी अगस्त का कवर करना है, पेपर नंबर 75, 76, 77, 78 ये सब एडवांस लेवल के हैं। करंट अफेयर्स कौन सा आपको कवर करना है उधर सब मेंशन है। ब्राउज़र आपको हम देंगे ही, आपको इसको प्रिंट करा के अपने पास रखना है और एक एक सेक्शन को कवर करते चले जाना है। वो कैसे कवर होगा ये हम बताएंगे। आपको हमारे टेस्ट के लिए डेली 3 से 3.5 घंटे की तैयारी करनी होती है। 1 घंटे टेस्ट में लगते हैं और फिर अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 घंटे लगते हैं अपना पॉइंटर तैयार करने में। तो अगर आप 6 से 7 घंटे इसमें दे सकते हो अभी, तो आप मेंस दोगे, बिकॉज ये बहुत प्रिसाइज एंड फोकस्ड है। इसीलिए आपको गधे की तरह पूरे दिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है प्री क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 6-8 घंटे मुझे दे सकते हो तो आप मेंस दोगे, ठीक है। देन कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स होते हैं और इसमें से ज़्यादातर पेपर्स यहाँ पे 100 क्वेश्चन फॉर्मेट में होते हैं। आपको अराउंड 15 पेपर्स 100 क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलते हैं, 85 पेपर्स 50 क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलते हैं। बीच बीच में कुछ पेपर्स और 100 क्वेश्चन फॉर्मेट में होते हैं, वो नॉर्मली रिवीजन पेपर्स होते हैं। तो इस तरह से अराउंड 6000 क्वेश्चन का ये पूरा प्लान है आपके पास, जिसको ले करंट अफेयर्स कब कहाँ से क्या पढ़ना है सब कुछ आपको ब्राउज़र में मिलेगा, जिसको लेकर के आप यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। सो व्हाट इज द कॉस्ट? दैट इज सीरियस पॉइंट। It must be 50,000? No. 40,000? Not even. 25,000? No. 20,000? Still not. Only 5,000. Only 5,000 for 100 super advanced papers. And किसी भी टाइम आप इसमें से चेक कर सकते हैं हमारे सोर्सेज के बारे में कि कहाँ कहाँ से चीज़ें कवर की जाती हैं। तो इसमें PYQs हैं, NCRTs हैं, NIOS, IGNOU, PIB, द हिंदू, इंटरनेशनल जर्नल्स एंड ऑथर्स के पब्लिकेशंस हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिसकी हेल्प से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो इसे जरूर ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन में धार दें। द कॉन्सेप्चुअल IAS पूरी तरह से आपकी प्रिपरेशन में समर्पित है और अपनी प्रिपरेशन की सारी बारीकियों को, सारी कमियों को, सारी गैप्स को आइडेंटिफाई करें, ब्रिज करें। सिलेक्शन आपकी मेहनत से होता है। फोकस का मतलब यह है कि आपकी गलतियां सुधारी जाएं। हर इंसान की गलतियां समान नहीं होती। एवरीबडी डज नॉट कमिट सिमिलर मिस्टेक्स। Mistakes have different nature, different orientation because of your behavior, methods of preparation. So topic wise questions provides you an ecosystem where आप अपनी personalized preparation कर सकते हैं। Thank you so much. Must join.